So this is the Jawahar Navodaya Vidyalaya question paper for 6th standard. (2024), which was conducted on 20th Jan 24. So right now I'm solving the maths section. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. If we write all the numbers from 1 to 100, number of times the digit 9 occurs is. तो 1 से 100 के बीच में नंबर लिखेंगे तो 9 कितनी बार आएगा? तो देखो 1 to 10 में 9 एक बार आएगा, 10 to 20 में एक बार, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. तो कितनी बार आया ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. This is the answer. So let's look at question number 42. The product of the greatest 3-digit number. तो greatest 3-digit number कौन सा होता है? Greatest 3-digit number is 999. And the least number of 3 digits. ठीक है, least number of 3 digits कौन सा होता है? 100. लेकिन उसने क्या बोला है? Product of the greatest 3-digit number and the least number of 3 digits which can be formed using 9, 6 and 0. तो 960 का greatest number कौन सा होगा? तो greatest होगा 960. And the least number क्या होगा? 609. इन दोनों का चाहिए प्रोडक्ट. ठीक है, सो वील फाइंड 609 इंटू 96 और उसमें साइड में एक 0 लगा देंगे हम. प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-digit number and the least number of 3 digits will be formed using the digits 9, 6 and 0. So 9 6 are 54, 6 6 are 36, 9 9 are 81, 9 6 are 54, 4 6 4 8 5 और एक 0, 5 8 4 6 4 0. This is the answer. A fraction remains the same or equivalent if the same number is added to the numerator and denominator. नहीं. Same number is subtracted from numerator. नहीं. Numerator and denominator multiplied by the same number other than 0. Yes. It is multiplied by reciprocal. नहीं. This is the answer. Four 392 divided by 3.66 is 1200. 4392 divided by 3.66 is 1200. तो पूछा क्या है उसने? 439.2 divided by 36.6. Okay, fine. So 4392 का वैल्यू क्या है? 1200 इंटू 3.66. यहाँ से आएगी. तो इसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स 439.2 विच इज 120 इंटू 3.66. ये 0 कट गया, तो मुझे इसका वैल्यू आ गया. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 439.2 अपॉन 36.6. 439.2 क्या है?
इट इज 120 इंटू 3.66 अपॉन 36.6. तो 3.66 और 36.6, तो 3.66 इंटू 10 इज 36.6. तो ये जीरो कट गया, तो आंसर इज 12. 45. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. साइड इसका ए है, तो क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड. ये क्या हुआ मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. कितना हुआ ये? 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 एंड ब्रेड्थ 11. एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. लेंथ 17, ब्रेड्थ 11. ये भी 17 होगा, ये भी 11 होगा. सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये L है, ये B है. सो इट इज 2 इंटू L प्लस B, which is 2 into 17 plus 11, which is 2 into 28 meters. ठीक है ना? तो ये 4a 2 into 28 है, because perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. So 4a is 2 multiplied by 28. So what is a? 2 into 28 upon 4. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 14s are. तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना बना मेरा? 14. पूछा क्या उसने? एरिया ऑफ स्क्वायर. क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, विच इज 196. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट. The number of packets of sweets weighing 2 by 3 kg each that can be made from 30 kg of sweets. So suppose n is number of packets. So n into weight of one packet is equal to total weight. So n into 2 by 3 is 30. तो n क्या होगा? 30 into 3 by 2. 2 15s are 15 3s are 45. Okay. The area of a rectangular plot is 616 square meters. Rectangle ड्रॉ कर लेते हैं. This is length, this is breadth. So area of rectangle is equal to length into breadth, and its breadth is 22. ये 616 है. देखो 616 देखे, 6 plus 6 12 minus 1. दिस इज डिविजिबल बाय 11. तो L into 22 is 616. So L is equal to 616 upon 22. 11 2s are 11 5s are 55. 56 are 2 1s are 2 28s are. तो इसका लेंथ आया 28 और ब्रेड्थ दिया है 22. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंस कहाँ पे लगाते हैं? पेरीमीटर पे. तो क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, विच इज 2 इंटू 28 प्लस 22. 28 प्लस 22 50. 50 इंटू 2 100 मीटर हो गया. ठीक है. The cost of fencing the plot at the rate of 7.40 rupees per meter. मतलब 1 मीटर के लिए 7 रुपीज 50 पैसे लग रहे हैं. अपने को 100 मीटर का फेंस लगाना है. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फेंस, और लेंथ ऑफ फेंस क्या है मेरा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ फेंसिंग. So this is equal to 7.50 into 100, which is 750 rupees. So this is the answer. A by B is a fraction where A is B minus 3. Okay. A by B is a fraction. So A is B minus 3. तो ये b माइनस 3 अपॉन बी, एंड a प्लस 10 अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इज 10 बाई 7. देखो a क्या है मेरा, b माइनस 3 प्लस 10 अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इज 10 बाई 7. ओके, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग बहुत सिंपल करते हैं इसको. a प्लस 10 माइनस a अपॉन बी इज 10 बाई 7. ऐसे क्यों किया मैंने, बिकॉज दिस एंड दिस आर लाइक फ्रैक्शंस. तो a उड़ गया, तो 10 अपॉन बी इज 10 अपॉन 7, मतलब b का वैल्यू मिला 7. अभी b मतलब डिनोमिनेटर 7 वाला, यही आंसर है c, तो c इज द आंसर. वेरीफाई कर लेते हैं. a क्या है, b माइनस 3, मतलब a इज 7 माइनस 3 विच इज 4. कन्वर्जन ऑफ 31 7 बाय 16 इंटू डेसिमल इज, देखो 31 7 बाय 16 जो है उसको डेसिमल बनाने के लिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको लिखते हैं 31 प्लस 7 बाय 16. तो ये और ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े आंसर से है. 31 पॉइंट समथिंग होगा ये 7 बाय 16. अभी मुझे सिर्फ 7 बाय 16 कैलकुलेट करना है, तो आई विल राइट 7 बाय 16 एज 7 इंटू 1 बाय 16. तो मुझे सिर्फ 1 बाय 16 फाइंड करना है. तो 1 बाय 16 क्या होगा, 1 बाय 4 इंटू, सॉरी 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 4. 1 बाय 4 क्या है, 0.25 इंटू 0.25. So what does this become? This becomes 25 by 100 into 25 by 100, which is 625 by 100. प्ले 2 0, तो 4 बार डेसिमल शिफ्ट होगा. सो दिस इज 0.0625. अभी इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ओके फाइन, सो आई कैन राइट दिस एज 7 इंटू 625 अपॉन 10000. 7 5 are 35. 7 2 are 14 plus 3 17. 7 6 are 42 plus 1 43. So this is 4375 upon 10000. ठीक है ना. So what does this become? Effectively what does 7 by 16 become? ये 7 by 16 बन गया मेरा 4375 अपॉन 10000. तो 1 2 3 4, तो ये बन गया मेरा 0.4375. So answer is 31 plus 0.4375, which is 31.4375. So this is the answer. Okay. If each side of a square is decreased to 1/3 of itself, then area of the square will be decreased to, देखो ओरिजिनल साइड लेता हूं मैं 30 सेंटीमीटर्स. सो व्हाट इज द ओरिजिनल एरिया,
साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये बना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या हुआ, साइड इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ, तो न्यू साइड कितना है, न्यू साइड कितना है 1/3 इंटू ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल साइड 30 है, तो 1/3 इंटू 30 विच इज 10 centimeters. So what is the new area? It is 10 into 10 which is 100 centimeter square. तो ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी रिड्यूस टू, नया एरिया कितना है, न्यू एरिया अपॉन ओल्ड एरिया इज 1/9. So this is the answer. The profit earned in selling an article for 2540 is equal to loss incurred in selling at 1850. The cost price of the article is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं CP लेता हूं x, ठीक है, तो ये भी CP x है. ऊपर वाला जो है मेरा CP x रुपीज, ठीक है, ऊपर वाला CP मेरा सपोज प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट वाला लाइन है, तो SP कितना है, प्रॉफिट वाले लाइन के लिए SP कितना है 2540. तो प्रॉफिट कितना बना, देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो प्रॉफिट बना 2540 माइनस एक्स. ठीक है, अभी नीचे वाले लाइन का देखते हैं. नीचे वाले लाइन के लिए SP कितना है 1850, तो ये लॉस वाला है. तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू SP माइनस लॉस इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. तो लॉस कितना है x माइनस 1850. तो उसका क्या कहना है कि ये जो प्रॉफिट है, वो जो नंबर है, वो नंबर ये है. द प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2540, ये जो प्रॉफिट बना है उसने रेड में, इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एट 1850. वो जो नंबर है लॉस का, मतलब सपोज 100 रुपये उसका CP था, तो अगर प्रॉफिट होता तो 120 में बेचता, तो 20 रुपीज जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो अगर 80 रुपीज में बेचता तो 20 रुपीज लॉस होता. ऐसा उसका कहना है. मतलब प्रॉफिट वाला जो पैसा है और लॉस वाला जो पैसा है वो सेम है व्हेन द नंबर्स आर एज गिवन इन द प्रॉब्लम. मतलब क्या, मतलब 2540 माइनस एक्स इज x माइनस 1850. ठीक है, तो x को यहां लेके जाते हैं, तो ये बनेगा 2x, क्योंकि माइनस है तो वहां पे जाएगा प्लस. 2x माइनस 1850 इज 2540. इसको यहां लेके आते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करके आएगा. सो दिस इज 2540 प्लस 1850 विच इज 2x. तो 2540 प्लस 1850, 9, 5 plus 8, 13, 2 plus 2, 4, 4, 5, 9, 4390, 4390. ओके, 25409, 8 plus 5, 13, 4390. तो ये मेरा इक्वेशन बना. इससे मेरे को x का वैल्यू निकालना है. सो x विल बी 4390 अपॉन 2. 2 2s are 2, 1s are 2, 9s are 2195. This is the answer. Okay. Next, a machine can print 12 pages in a minute. तो ये number of
पेजेस एंड टाइम। तो कितने पेजेस है? 12। कितने टाइम में? 1 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक टू प्रिंट 5760 पेजेस? इतने पेजेस प्रिंट करने तो टाइम कितना लगेगा? तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। दिस इज 5760 डिवाइडेड बाय 12। 12 4s are 48, 12 8s are 96, 480 मिनट्स। लेकिन आंसर आवर्स में दिया है, 60 से डिवाइड कर दो, 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100। सीपी ऑफ वन बुक कितना है? 100 रुपीज। अ शॉपकीपर सेल्स 3 बुक्स फॉर 275। तो फॉर 3 बुक्स एसपी कितना है? ₹275। लेकिन 3 बुक्स का सीपी कितना है? 300। तो इज एसपी ग्रेटर देन सीपी? नो। इसलिए क्या बना उसका? लॉस। लॉस के लिए क्या है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, तो लॉस ऑफ 25 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। देखो ये सारे मिक्स फ्रैक्शंस है, तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 5 3 बाई 8 मतलब 8 5 40 प्लस 3, 43 बाई 8। 8 8 64 प्लस 1, 65 बाई 8 माइनस 8 3 24 प्लस 1, 25 बाई 8। 8 5 40 प्लस 5, 45 बाई 8। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लीकेशन। 43 इंटू 65। 5 3 15, 5 4 20, 21, 6 3 18, 6 4 24, 25, 5 9 7 2। तो ये बना 2795 अपॉन 64 माइनस 25 इंटू 45। 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 4 20, 4 2 8, 10. So this becomes 1125 minus 1125 अपॉन 64। तो 2795 में से 1125 माइनस करना, तो ये बना 0 0, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6, 1 6 7 0। ओके, कैसे बना? 1670 अपॉन 64। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2795 माइनस 1125, 0761, 1670। तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 32 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। So this is 835 अपॉन 32। अभी ये अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है उसने, एग्जैक्ट नहीं, तो इसलिए हम लोग एक्चुअल डिवीजन करते हैं। We'll do 835 upon 32. 32 2s are 64. 13 minus 4 9, 7 minus 6 1, 195. 32 into 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 19, 192. 3 डेसिमल 0 छोटा है 0 0, 26 होगा इसका आंसर। ये देखो, ये 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ओके, यूनिट्स पे क्या है 9,
टेंस पे 0 0 0 3 30 10,000 एंड 9 टेंस, तो 9 टेंस नहीं है, 9 यूनिट्स है, तो ये हो गया। 9 हंड्रेड्स भी नहीं है, 9 वंस है, बस 3 10,000, ये आंसर है। सुमित वेज 107 kg, तो सुमित का वजन कितना है? सुमित का वजन कितना है? 107 kg। एंड संजय weighs 82 kg. The difference of their weight, if the weight of each is rounded off to the nearest tens, हर एक का वेट पहले राउंड ऑफ करके डिफरेंस लेना है, तो 107 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 110, और 82 का 80, तो डिफरेंस कितना है? 30। ओके फाइन। द सम ऑफ टू एंगल्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, देखो एग्जांपल लेते हैं, दो एंगल लेते हैं, 35 प्लस 65, तो ये कितना हुआ? 100, तो 100 मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, नहीं पॉसिबल। क्यों? पॉसिबल है, वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल इज पॉसिबल। 90 प्लस 10 100, वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट, वन ऑब्ट्यूज 95 एंड वन एक्यूट, ये पॉसिबल है। टू एक्यूट एंगल्स पॉसिबल, अभी देखा 35 65। टू राइट एंगल्स नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि टू राइट एंगल्स का सम क्या होगा? 180, एंड 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। दिस इज द आंसर। The sum of the digits of a number is subtracted from the number. Let's take an example. 95 ये नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 9 प्लस 5 14, सम ऑफ डिजिट्स 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 1 8, आंसर आया 81। तो 81 इज डिविजिबल बाय, ये 9 से डिविजिबल है, और एक ही ऑप्शन है 9। नेक्स्ट, इन द फिगर द मेजर्स ऑफ AOB, BOC, COD एंड UR रिस्पेक्टिवली आर। देखो ये O जो है ये पॉइंट है, एंड एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या? x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 कितना हुआ? 360। तो 3x 4x 7x 7 प्लस 6 13x, 13x प्लस 100 कितना हुआ? 360। तो 13x 100 यहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, 360 माइनस 100 कितना हुआ? वो 260। 13x इज इक्वल टू 260, तो x क्या होगा? 260 अपॉन 30 विच इज 20। x का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू है ये 20, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2x 40 होगा, 4x 80 होगा, 6x 120 होगा। The given bar chart shows the number of matches played by cricket teams of different countries in a year. How many more matches were played by Australia than Pakistan? ऑस्ट्रेलिया कितना खेला, पाकिस्तान कितना खेला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? That's it. Okay, thanks a lot.